લાસ્ટ આપણે હર્ટ્ઝના એક્સપેરિમેન્ટથી બાકી છે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટ. તો સર ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટથી બાકી છે. એની ડેફિનેશન પ્રોપર આપણે લખી દઈએ. when clear metal surface when clear metal surface is irradiated with the radiation of sufficiently high frequency, electrons are emitted from metal surface this phenomena is called photoelectric effect. When clear metal surface is irradiated with radiation of sufficiently high frequency and electrons are emitted from the metal surface, this phenomena is called as a photoelectric effect. तो एक क्लियर मेटल सरफेस लेने का उस पे हमें सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी एमिट करनी है. वो एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि उसकी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो. तो E इक्वल टू एच इसे एनर्जी, वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए. तो वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी ना, वो इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल जाए. दैट इज नोन एज ए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. जहां इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है ड्यू टू द मेटल पे जो हम एमिशन कर रहे हैं ना, वो वेव के कारण उसका एमिशन होता है. इट इज नोन एज ए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. क्लियर? ध्रुवील पता चला. When clear metal surface is irradiated with the radiation of sufficiently high frequency of electron are emitted from the metal surface, this phenomena is called as a photoelectric effect. तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपको किसी भी हिसाब से वही फ्रीक्वेंसी लेनी है जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो. मिनिमम वो लेना. यदि आपको कोई फ्रीक्वेंसी मिनिमम डिफाइन करने के लिए बोले तो HF minimum is 50 और 50 is EV0. It is known as a work function of a matter. तो ये वर्क फंक्शन ऑफ ए मैटर. वो मेटल पे डिपेंड करेगा. तो उसके भी हम प्रॉब्लम आज शुरू करने वाले हैं. तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट और हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन. तो ये आपने लिख लिया है. सर 1 मिनट. ओके, पता चल रहा है? यस सर. ओके. ये उसकी डेफिनेशन. अभी हम हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन देखेंगे और उसका पूरा डिस्कशन करना है अच्छी तरह. और आपको है ना अभी थियरी पूरी लर्न करना पड़ेगा घर पे 2-3 बार.
मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगा। सर हाँ સર આમાં ફોટોન્સ ઇન્સિડન્ટ કરીશું ને લાઇટ સાથે हाँ 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 હા जो સર तने समझेगा फ्रीक्वेंसी फोटोन है, फोटोन इज a quantum, one photon has an energy hf, suppose we incident n photon, that time n photon collide with the n electrons, એટલે n photon n electrons સાથે collide થાય, one electron can be output, બધા ઇલેક્ટ્રોન વધારે amount માં આવશે, એનો મતલબ એવો થયો તું જેટલા લાર્જ amount માં નંબર ઓફ ફોટોન ઇન્સિડન્ટ કરીશ એટલા લાર્જ amount માં ફોટો ઇલેક્ટ્રોન બહાર આવશે. હવે તું નંબર ઓફ ફોટોન ઇન્ક્રીઝ કરે means what, it is a intensity. अब आप बोलोगे व्हाट इज इंटेंसिटी, तो उसका इक्वेशन है I इक्वल टू E बाई डी. यदि आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है तो E इक्वल टू NHF बाई डी. एक फोटोन की एनर्जी HF है तो n फोटोन की एनर्जी NHF होगी, और नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, सपोज वी राइट n dash, when the number of photon increase intensity is increased, when the intensity is increased large amount of electron can be shifted from the metal surface and large amount of current will be obtained, therefore I gives I. સિમ્પલ વસ્તુ, ઇન્ટેન્સિટી ઇન્ક્રીઝ થાય ને તો કરંટ ઇન્ક્રીઝ થાય, અને ઇન્ટેન્સિટી ડિક્રીઝ થાય તો કરંટ ડિક્રીઝ થાય. સિમ્પલ એમસીક્યુ. કેમ? तो वो लॉजिक समझो, एक सिंपल लॉजिक है, सपोज आप n के साथ कोलाइड हो गए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, यदि आपने 5 फोटोन इंसिडेंट किए तो 5 इलेक्ट्रॉन ही बाहर आएंगे, यानी आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाए हैं यानी आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, और जब इंटेंसिटी बढ़ गई तो नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट हो गए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास होंगे तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा. When the intensity of light increase, the current also increase. આપણે આ બધું ડિસ્કશન કરવાનું છે, આ ખબર પડી મેં જે શું કહી રહ્યો છે, તો નેક્સ્ટ માં મારે Yes, sir. સમજાવવું ના પડે. એટલે તમે જેટલા એમાઉન્ટ માં ઇન્ટેન્સિટી વધારો ને એટલા એમાઉન્ટ માં લાર્જ એમાઉન્ટ માં ઇલેક્ટ્રોન બહાર આવી જશે. આપણે એવું છે કે તમે 15 જણા બેઠા હો અને 15 જણા આવે તો 15 એક એક ને તો કવર કરવો પડે, માર તો પડે જ, પણ 15 ને કવર કરે તો 15 જણા બહાર તો આવી જાય, એટલે આપણે લાર્જ એમાઉન્ટ માં કરંટ પડે. પણ એક બે જણા આવે 15 જણા હોય તો પેલા ભાગીથી જવું પડે કદાચ, તો કરંટ ના બી મળે. ઇટ ડિપેન્ડ્સ અપોન કન્ડિશન. એવું જ કંઈક મેટલમાં બી હોય છે. तो ये क्लियर है सबको? ओके, अभी हमें ऑब्जर्वेशन देखते हैं. Photoelectric first observed by the Hertz experiment in 1887, और वो स्टडी कर रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में. ये तो आपको मालूम होगा कि उस टाइम पे उसका स्टडी था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. उसने फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस किए थे. उस टाइम में उसके पास एक डिस्चार्ज क्योंकि उसमें कोलिजन हो रहा था ऐसे मेटल के पास, दो मेटल के पास पोटेंशियल डिफरेंस था, और यहाँ पे कोई गैस भरा हुआ था, इनर्ट गैस. जब यहाँ से किसी को रेस यहाँ पे इंसिडेंट करता है तब फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, वो तो अलग बात. पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव होते हैं ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस. तो कोई आयन के साथ उसका कोलिजन, आयन के पास बीच में न्यूक्लियस होता है, आजू बाजू इलेक्ट्रॉन होते हैं. यदि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होगा, इट विल बी शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा. वो एक्साइटेड स्टेट से वापस आएगा ना तो एनर्जी रिलीज करेगा. इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तब उसने डिफरेंट टाइप ऑफ कलर उसने गेन किया था. उस टाइम पे उसने डिफरेंट टाइप ऑफ कलर ऑब्टेन किया था. तो ये हमें स्टडी करना है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट. तो पहले वो रीड करना पड़ेगा 1 by 1 पॉइंट. तो हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन तुम्हें स्टडी करना है. प्रणव, Hertz observation. हाँ, अच्छी तरह धीरे से पढ़ना, ज्यादा मत ले लेना, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे. ओके, तो धीरे से पढ़ना. आगे
Question 8. हाँ. Hertz observation. Explain in short. Hmm. Photoelectric effect was first observed by scientist Hertz in 1887. Hmm. Hertz made experimental investigation of production of electromagnetic waves by means तो of हर्ट्ज का spark मेन स्टडी discharge. था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन, उसके बारे में वो स्टडी कर रहा था आगे. Hertz observed that high voltage sparks across detector loop were enhanced when the emit and RM when light is incident on metal surface. Some Okay. electrons near surface absorbed enough energy from incident radiation to overcome attraction of positive ions in the metal surface. ओके, अभी मैं आपको एक्सप्लेन. जब वो स्टडी कर रहा था तब यूवी रेस अल्ट्रावायलेट किसी मेटल पे इंसिडेंट हो रहे थे. तो यूवी रेस मेटल पे इंसिडेंट होने के कारण मेटल में से थोड़े इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे थे. तो उसको ये फिनोमिना पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी हो सकता है. इट इज वन टाइप ऑफ रेडिएशन. जैसे हमने अभी सोलर पैनल यूज कर रहे हैं. व्हाई वी यूज सोलर पैनल? तो उसमें मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ऊपर के सरफेस पर इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो हमें करंट मिल जाए. तो हमने क्या किया, अभी सब लोग पैनल क्यों लगा रहे हैं? तो अभी प्रोडक्शन बंद करना है जीबी का, वो भी इतने दिन तक नहीं होता है, करीब 1 मंथ तक होता है. तो रिमेनिंग पार्ट 9 to 10 month we getting highest energy from the solar panel, and therefore we consume less amount of energy. तो हमें कोल और ये दूसरा जो ऑयल यूज कर रहे हैं वो कम हो जाएगा, अपने आप सोलर पैनल पे वर्किंग होने लगे. तो ये उसका टारगेट है कि हम पावर कंजम्पशन कम करें. या तो पावर यूज करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सोलर पैनल से चले, ये उनका नेक्स्ट टारगेट है. तो वो टारगेट हम अचीव कर पाए ना, तो हम 80% हमारी एनर्जी कम हो जाएगी. इट इज वन टाइप ऑफ रेज एमिशन. इट इज सोलर पैनल. सोलर में सोलर सन आ रहे हैं, उसमें से जो रेज आ रहे हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन करा रहे हैं. इट इज वन टाइप ऑफ सोलर इफेक्ट. तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन को एमिशन करा रहे हैं और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं. तो उस मैटर की तरह ही आगे. After gaining sufficient energy from incident light, the electrons escape from the surface of the metal into surrounding space. ओके, आगे. Fatigue, surface, ओके, अब मैं आपको Helvetian एक बात बता दूं. यदि ये पहले न्यूट्रल है, न्यूट्रल यानी क्या हुआ, उसके पास पॉजिटिव नेगेटिव सेम अमाउंट में, इट इज कॉल्ड एज ए न्यूट्रल. ये सब सेम अमाउंट में. अभी आपने कोई मेटल से कोई रेस का एमिशन किया, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो ये मेटल कैसी हो गई, पॉजिटिव. यदि हमने ज्यादा अमाउंट में रेस इंसिडेंट किया, उसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं ड्यू टू द एमिशन ऑफ लाइट. तो हम उस पे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जब इंसिडेंट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं और वो पॉजिटिव बन जाते हैं. ये उसका ऑब्जर्वेशन. आगे है हॉलोवास एंड लिनार्ड ऑब्जर्वेशन, मेन है. तो अभी हम शुरू करें हॉलोवास एंड लिनार्ड ऑब्जर्वेशन. उसके ऑब्जर्वेशन क्या है? तो पहला उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी, ये पता चल रहा है आपको? कोई डाउट है अभी आपको? किसी को कुछ डाउट? ये आपको रटना नहीं है, समझना है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. तो लीनार्ड का एक्सपेरिमेंट था. ये उसने एक ट्यूब बनाई थी, उसमें यहाँ पे ने कैथोड पॉजिटिव प्लेट पे रखा था. ये रियोस्टेट है, ये कलेक्टर है, ये एनोड और ये कैथोड. यहाँ पे जो विंडो है वो क्वार्ट्ज विंडो है. यहाँ पे हम यूवी रेज इंसिडेंट करेंगे, यूवी रेज. और ये जो विंडो है
वो क्वार्ट्ज विंडो है। अभी जो रेज इंसिडेंट होते हैं या मेटल, तीन मेटल सरफेस पे ये एनर्जी एच ज्यादा होगी वर्क फंक्शन से, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए और ये फ्री हो जाए। बट आपको मालूम है यदि आपने ज्यादा एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, वो एनोड की तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए आपको यदि करंट चाहिए सर्किट में तो पहले आपको एनोड को पॉजिटिव बनाना होगा। जब एनोड कोई टर्मिनल पॉजिटिव नहीं बनता है तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री तो होते हैं, डिस्चार्ज भी होते हैं, बाहर निकल भी जाते हैं, पर वो एनोड की तरफ जाने में बहुत देर लगाते हैं, बिकॉज दे आर मूविंग रैंडमली। यदि उसका बात क्लियर हो जाए ना तो हमें बेनिफिट ये हो सकता है कि सपोज हमने यहाँ पे पॉजिटिव बना दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से बना दिया, तो all electron will be attracted towards the anode and we getting the highest amount of current. यहाँ पे evacuated chamber ये पूरा, because we have set a quartz window, quartz window रखते हैं ना तो यहाँ पूरा evacuated chamber है, यानी जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे ना तो उसको किसी के साथ कोलिजन नहीं करना है। पर वो इनिशियली जब ये प्लेट पॉजिटिव नहीं होती है ना तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज तो हो जाते हैं, पर दे आर मूविंग रैंडमली होने के कारण उनके टारगेट के पहुंचने में उसने देर लगा दिया है, इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचने में बहुत टाइम लगा रहा है। Suppose we making A is positive terminal and collector becomes negative terminal, then all electron move towards the anode easily because they always electron attract towards the positive terminal and they are moving sharply, and we getting the highest amount of current. Also, we count the number of electron that can reach in a collector region or anode region. एनोड को हम कलेक्टर बोलते हैं, ये कलेक्टर है इलेक्ट्रॉन, ये लिबरेट हो रहा है। ये कैथोड प्लेटन है वो धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएगी, ये धीरे धीरे नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द एनोड। क्लियर? तो ऐसा होने वाला है। अभी ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस तो रखना ही पड़ेगा। तो हमें EV0 इज HF। पहले हम जो एनर्जी इंसिडेंट करेंगे वो वर्क फंक्शन जितनी होनी चाहिए। अभी हमने ज्यादा एनर्जी दे दी तो उसमें से क्या होगा वो आपको समझना है। यदि हमने एनर्जी ज्यादा दी तो HF0 इज अ वर्क फंक्शन ऑफ मैटर और बाकी का जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मिलेगा इज नोन एज ए काइनेटिक एनर्जी। ये सब एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन ने दिया है। हम जितनी एनर्जी दे रहे हैं उसमें से ऐसे HF0 इज अ वर्क फंक्शन ऑफ अ मैटर और बाकी की इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और वो काइनेटिक एनर्जी लेके कलेक्टर रीजन में एंटर हो जाए। तो उसने पूरा एक्सप्लेनेशन ग्राफ का भी किया था। तो अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं तो उसको हमें समझना है। तो पहले लिनार्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। लिनार्ड, चलो। Lienard's experiment. During 1886 and 1902, Helvest and Lienard studied phenomenon of photoelectric emission. As shown in figure, two metal electrodes are kept at opposite ends inside evacuated glass tube. One ये electrode is called पूरा cathode. ग्लास ट्यूब है, उसमें दो टर्मिनल है, कैथोड एनोड, और जो एनोड है वो हमारा कलेक्टर है, ये हमारा कैथोड है। आगे Cathode is called emitter, which is photosensitive surface. Second electrode is called collector A. Potential difference is applied between C and A. ओके। A quartz window is provided in this tube through which ultraviolet rays are incident on cathode C. When तो यहाँ से ultraviolet rays करेंगे कैथोड में। आगे when ultraviolet rays are incident on cathode C is stopped, then current in circuit will become zero. तो Anode हम A जब is kept इंसिडेंट करेंगे ना, 2 मिनट यूवी रेस इंसिडेंट नहीं करेंगे ना तो करंट नहीं आएगा। जब हम यूवी रेस इंसिडेंट करेंगे तो करंट मिलेगा। यानी ये हुआ कि हमारी जो एनर्जी है वो EV0 से वर्क फंक्शन से ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन लिबरेट होकर सामने जाने वाला। यदि आपको फास्ट करंट चाहिए ना
तो ए को पॉजिटिव बना दो, तो ये इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे अट्रैक्ट होकर एक के पास चले जाएंगे और हमें करंट मिल जाए। यानी आपको तुरंत करंट चाहिए तो आपको ये को पॉजिटिव बनाना होगा, सी को आपने आगे। Anode A is kept at positive voltage with respect to cathode C, hence it attracts electrons emitted and there is flow of electron, hence current flow in the circuit. ओके, When तो अभी ultraviolet करंट आ रहा है, radiation is करंट क्यों आ रहा है? बिकॉज ए पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है, एंड ऑल इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूं, शांति से अभी अच्छी तरह देखना, व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी मैं आपको अच्छी तरह समझा सकता हूँ, ये आपका क्लियर माइंड रखना, अभी माइंड को अच्छी तरह समझने के लिए यूज करो। यहाँ पे पॉजिटिव है तो सब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गया, तो अभी मैंने यहाँ पे नेगेटिव बना दिया तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन आएंगे। व्हाई इट विल बी कम लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत कम इलेक्ट्रॉन आए, और ये नेगेटिव और ज्यादा कर दिया तो यहाँ पे आने वाले इलेक्ट्रॉन बंद हो जाएंगे। तो ये क्यों होगा, ये मुझे आपसे पूछना है। सर रिपल्जन ना लीधे। यस, ये इलेक्ट्रॉन ने रिपल्सन करे, रिपल्सन करे એટલે ઇલેક્ટ્રોન ધીરે ધીરે આવતા બંધ થઈ જાય। એટલે જો તમારે ઇલેક્ટ્રોનનો ફ્લો ડિક્રીઝ કરવો હોય, ભલે ઇલેક્ટ્રોન લિબરેટ થાય ફ્રોમ ધ મેટલ સરફેસ, પણ એને ત્યાં અટકાઈ રાખવા હોય ને તો અમુક નેગેટિવ પોટેન્શિયલ આપણે ક્રિએટ કરીએ તો ઓલ ઇલેક્ટ્રોન વિલ બી સ્ટોપ, इट इज नोन एज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है और हमें ये EV0 जितनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में देनी पड़ेगी तो इट विल बी मूव कंपल्सरी टुवर्ड्स द, अदरवाइज वो अपने आप नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ रिपल्सन। तो ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ी सी आइडिया लेना अच्छी तरह, वो बैंड और आपका कैसा केमिस्ट्री उस पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको होता है ऑर्बिट में होता है, और आपको ये भी मालूम है क्लोजेस्ट ऑर्बिट में होते हैं उसको अट्रैक्शन ज्यादा होता है नियर टू द न्यूक्लियस के कम होता है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। फिजिक्स की बात छोड़ दो, जो न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ज्यादा होता है, बॉन्डिंग ज्यादा होता है कि कम होता है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, नॉट फिजिक्स। जो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन है उसका अट्रैक्शन बॉन्डिंग ज्यादा होता है कि कम होता है? बॉन्डिंग इज मोर, ओके, ज्यादा होगा। जो नियर है न्यूक्लियस के पास वो जल्दी से बाहर निकलने वाले नहीं है, जो बाहर है टॉप मोस्ट पे है वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसमें से इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल सकते हैं, पर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने वाले नहीं, उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इसलिए हमने मेटल का यूज करते हैं, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर की आउटर सरफेस में होते हैं, वो जल्दी से बाहर निकल ओके। तो ये दोनों यहाँ आ जाएंगे पर ये दोनों आना बंद हो गए। ओके, पता चल रहा है आपको? दो ही पर्सन आंसर दे रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं दो को ही पढ़ा रहा हूँ। सबको पता चल रहा है? સર ફરી સમજાવો। હા, આ બધા છે ને ઇલેક્ટ્રોનના લેવલ છે કે સપોઝ ઇલેક્ટ્રોન મેટલમાં હોય તો તમારા ડીપમાં મેં તમને ખાલી થોડુંક સમજાવી દઉં છું કે બધા ઇલેક્ટ્રોન આ બધા લેવલ પર છે, બોન્ડિંગ થયેલા છે। બોન્ડિંગ હોય ને તો નેગેટિવ એનર્જી હોય, તો આપણને ખબર છે કે પોટેન્શિયલ એનર્જી becomes negative because of attraction, તો આ બધા બોન્ડિંગ એનર્જી છે।
હવે મેં અહીંયા છે ને -002 eV નું નેગેટિવ પોટેન્શિયલ બનાવ્યું એનું. ઇટ ઇઝ અ કલેક્ટર. તો કયા ઇલેક્ટ્રોન આવે? તો આ બે ઇલેક્ટ્રોન તો ના આવે બીકોઝ નેગેટિવ નેગેટિવ છે. પણ એ જો તમને આવું ડ્રો કરતા આવડતું હશે. બરાબર છે. તો અહીંયા બે માટે તો આ પોઝિટિવ જ છે 0.02. તો પ્રાચી આ બંને આવશે એટલે બે બે ચાર પેર થઈ એટલે ચાર ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયા સપોઝ. હવે મેં 0.03 eV કરું ને તો હજુ બી આવશે અને હું 0.04 કરીશ ને તો બધા સ્ટોપ થઈ જશે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ. ટુ સ્ટોપ ધ ફ્લો ઓફ ઇલેક્ટ્રોન એક એવું પોટેન્શિયલ ઓબ્ટેન કરો મિનિમમ કે જેમાં ઇલેક્ટ્રોન સ્ટોપ થઈ જાય. ઓલ ઇલેક્ટ્રોન એવું નહીં કહેતો કે બે ચાર ઇલેક્ટ્રોન. એક એવું નેગેટિવ પોટેન્શિયલ ગેઇન કરવાનું કે આવતા ઇલેક્ટ્રોનને આપણે ત્યાં સ્ટોપ કરીએ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ. અને સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ ને ઇલેક્ટ્રોન વડે મલ્ટીપ્લાય કરો તો EV0 એનર્જી થાય. આવી એનર્જી ઇલેક્ટ્રોનને કાઇનેટિક એનર્જીના ફોર્મમાં આપવી પડે તો ઇલેક્ટ્રોન કેન બી રીચ એટ એ પોઈન્ટ. નેગેટિવ હોય ને તો બી એને ત્યાં જ મોકલવું હોય તો આપણે EV0 જેટલી એનર્જી કાઇનેટિક એનર્જીમાં આપવાની તો ઇટ વિલ બી રીચ એટ એ પોઈન્ટ. તો આ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલની ડેફિનેશન છે કે કેવું પોટેન્શિયલ ગેઇન કરવાનું કે આવતા ઇલેક્ટ્રોન ત્યાં સ્ટોપ થઈ જાય. તો આપણે એને પોઝિટિવ બનાવેલો ત્યારે તો બધા ઇલેક્ટ્રોન એટ્રેક્ટ થતા હતા પણ એને હવે નેગેટિવ બનાવશું એટલે રિપલ્શન થશે અને એવું મિનિમમ પોટેન્શિયલ હશે ઇલેક્ટ્રોન કેન નોટ રીચ ટુ એ પોઈન્ટ. એ જે મિનિમમ પોટેન્શિયલ છે એ તો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ. અને જો હવે આપણે કમ્પલ્સરી ઇલેક્ટ્રોનને ત્યાં મોકલવો જ હોય તો EV1 કાઇનેટિક એનર્જી. તો કાઇનેટિક એનર્જી એવી છે આટલી તો આપવી જ પડે તો જ इलेक्ट्रॉन कंपल्सरी टू रीच एट ए पॉइंट. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. छोटे बच्चे होते हैं तो उनको केजी में रखना होता है, प्ले ग्रुप में रखना होता है. तो वो सुबह शाम अपने मदर के साथ होते हैं यानी वो कभी भी किसी को मिले नहीं है. अभी 3 साल का है 4 साल का है तो हम स्कूल में उसको रखने जाते हैं तो मदर फादर पहले इनिशियली जाते हैं उनके पास. तो ये लोग तो वान भी रखा सकते हैं ना पहले दिन पर 1-2 मंथ तक तो वो वान नहीं रखेंगे. मदर फादर दोनों उसको छोड़ने के लिए जाएंगे. उनको ऐसा न लगे कि हमें छोड़ दिया. फिर आप बड़े हो गए तो आप वान में जाते आप अपने आप जाते किसी को पता नहीं चलता. पर छोटे बच्चों को अट्रैक्शन होता है, बॉन्डिंग होता है, वो तोड़ना पड़ता है. वो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक यानी एक्टिवा लेके तोड़ना पड़ता है. उनको अट्रैक्शन है घर के साथ वो तोड़ने के लिए हम एक्टिवा चलाते उसको बिठा देते हैं फिर स्कूल पे और ले जाते इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक. फिर धीरे धीरे उसको अट्रैक्शन कम हो जाएगा घर से. वो घर भी आएगा ऐसा नहीं है कि घर पे कभी नहीं आएगा पर अट्रैक्शन तोड़ने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है. तो ये EV0 इज 1/2 MV मैक्सिमम स्क्वायर. ये हमारा मेन पॉइंट है. चलो अभी आगे रीड करना पड़ेगा तुम्हें और सबको पता चला. किसी को पूछ लेना. मेरा ये ना बहुत क्लियर है. पार्ट 2 में आपको ज्यादा क्लियर नहीं लगाऊंगा पर आपका क्लियर होना चाहिए. ये डाउट हो तो आप पूछ लो. क्लियर होना चाहिए. किसी को डाउट? प्राची तुम्हें पता चला? निधि निधि प्राची निधि क्लियर? कोई डाउट? वृषाली चलो ओके तो आगे बढ़ते हैं. पूछना हो तो शर्म मत रखना पूछ लेना जो भी है. चलो आगे. When ultraviolet radiations are stopped, current Hmm. flowing through the circuit will stop. Hmm. Leonard studied how photocurrent ઇન્સિડન્ટ કરવાનો સ્ટોપ તો ઇલેક્ટ્રોન સ્ટોપ થઈ જશે એટલે આપણને કરંટ નહીં મળે. ઓકે આગે. Leonard studied how photocurrent changes with collector plate potential with frequency and intensity of incident light. ओके लिनार्ड ने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किया कि इंटेंसिटी के साथ किसका रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी के साथ किसका रिलेशन है, वो सब लिनार्ड ने स्टडी किया. When we increase the frequency of incident light
kinetic energy of electron will be increased, but the number of photon does not change. When we increase the intensity of light, the number of photon will be increased, current will be increased, but the kinetic energy of each electron does not change. That is the main reason. आपको पता चल रहा है वो क्या बोल रहा है लिनार्ड कि जब हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट इंक्रीज होगा, पर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो ईच इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज. मैं बोला वो पता चला. यस सर. ओके, मुझे आप समझा दो एक बार. जब मैं इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या होगा यहाँ पे, करंट इंक्रीज होगा या एनर्जी इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन. સર કરંટ. यस, अब करंट क्यों इंक्रीज होगा. સર વધારે ફોટોન આવશે એટલે વધારે ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થશે. यस, I इक्वल टू NH. ज्यादा फोटोन होंगे तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन कोलाइड होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो ज्यादा करंट मिलेगा. Therefore, when we increase the intensity, we getting large amount of current. Now, when we increase the frequency, frequency एक फोटोन की है HF, तो हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो वो बाहर तो निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी के साथ सामने चला जाएगा. तो हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, बट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज. नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज. वो लिनार्ड का ऑब्जर्वेशन. पर लिनार्ड को कुछ मालूम नहीं था. लिनार्ड को ये एक्सपेरिमेंट किसने लास्ट में एक्सप्लेन किया है, आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया, जो मैंने पहले से आपको समझा दिया. आइंस्टाइन ने ये जो एक्सप्लेनेशन दिया ना उसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला. ये चैप्टर में उसको नोबेल प्राइज. ऐसा मान रहे थे ये लोग है ना, एक जगह पे आइंस्टाइन को बुलाया था. आइंस्टाइन को एक बार नोबेल प्राइज पहले से मिल चुका था. उसने थियरी ऑफ रिलेटिविटी में पूरा एक्सप्लेनेशन देके उसका नोबेल प्राइज एक बार हो चुका था. उसको इनविटेशन दिया गया था. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन शुरू किया था वो प्लांक था. प्लांक ने शुरू किया था. प्लांक की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा माना जाता है. पर जब प्लांक को बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगे सेमिनार, तो प्लांक आंसर दे नहीं पाया. और प्लांक को ये पता था कि ये वो एक थियरी कॉन्सेप्ट रॉन्ग कर रहा था. उसको बोल रहा था वो क्लासिकल फिजिक्स, ये क्वांटम फिजिक्स हम शुरू कर रहे हैं आज. पर उस टाइम पे क्लासिकल फिजिक्स बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारा लिखा हुआ था और ये गलत कर रहा था. क्लासिकल फिजिक्स को पहले ही रॉन्ग कर रहा था. इसलिए सबने क्वेश्चनिंग शुरू कर दी और वो आंसर दे नहीं पाया प्रॉपरली. और उसने बोला कि हम दूसरे दिन एक्सप्लेन करेंगे सेमिनार में. और दूसरे दिन बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए, वापस वो आंसर दे नहीं पाया. तो आइंस्टाइन पीछे खड़ा था. उसने बोला आप ये डिस्कस करना बंद कर दो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो उसने पूरी इफेक्ट एक्सप्लेन कर दी. उसलिए उसको नोबेल प्राइज मिला. उसने वहां पे वेव थियरी की कॉन्सेप्ट, वेव थियरी को रॉन्ग कर दिया. अब वेव थियरी को रॉन्ग करने का, यानी बहुत सारे वेव थियरी डेवलप करने वाले भी वहां बैठे थे. तो उसने वेव थियरी रॉन्ग करने का एक टिपिकल मेथड बनाया था जिससे वेव थियरी अपने आप रॉन्ग हो जाती. बाद में डी ब्रोगली ने ऐसा बोल दिया कि particle have a two type of nature. Sometimes it behave like as a waves and sometimes it behave like as a particle nature. And therefore Einstein is right because it will be explained the photoelectric effect can be explained with the help of particle nature, cannot be explained with the wave nature. यानी आप लोग वेव नेचर से डिस्कस करें वो गलत है. बहुत सारे क्वेश्चन ये चैप्टर में आपको आएंगे और आपको समझना भी है. तो ये आपको पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. ये लिनार्ड को पता नहीं चल रहा था, उसने ऑब्जर्वेशन लिया था. ऐसा क्यों हो रहा है उसको कुछ मालूम नहीं था. अभी उसका ऑब्जर्वेशन रीड करना है आगे. सर
પતી ગયો છે ટોપિક હોલવાસ નું આવ્યું हाँ सर। ओके हॉलवास एक्सपेरिमेंट चलो हॉलवास की बात करें ये क्लियर है आपको ओके किसी को प्रॉब्लम फ्री और ये सब लोग को प्रॉब्लम हो दिया ज्ञानी कोई प्रॉब्लम प्रियांशी कोई डाउट आप बोलोगे तो पता चलेगा ओके तो भी मैं आगे शुरू कर रहा हूं तो इनिशियली जिंक प्लेट थी ना वो न्यूट्रल थी अब आप बोलोगे न्यूट्रल क्या होता है तो जितने अमाउंट में उसके पास पॉजिटिव है उतने अमाउंट में उसके पास नेगेटिव चार्ज इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल अब जिंक प्लेट पे यूवी रेज इंसिडेंट किए तो यहां से इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो गए यानी जिंक प्लेट बिकम्स पॉजिटिव यानी थोड़े अमाउंट में जिंक प्लेट पॉजिटिव हो गई when we incident the UV light on zinc plate neutral zinc plate becomes positive when we it release the electron अब ये पॉजिटिव है वापस उसने यूवी रेज वापस इंसिडेंट किए तो ये मोर इलेक्ट्रॉन कैन बी लिबरेट इट विल बिकम्स मोर पॉजिटिव और उसने ज्यादा रेज इंसिडेंट किए लॉन्ग टाइम इट बिकम्स मोर पॉजिटिव उसका मीनिंग ये हुआ हम ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझ रहे हैं कि यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रही है जब यूवी रेज इंसिडेंट होते हैं इनिशियली जिंक प्लेट न्यूट्रल है तो उसके पास जितने पॉजिटिव आयन है इतने अमाउंट में उसके पास इलेक्ट्रॉन भी है यदि हमने यूवी रेज इंसिडेंट किए तो पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे तो थोड़े अमाउंट में इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुए तो थोड़े अमाउंट में ये पॉजिटिव रेट बनी फिर वापस यूवी रेज इंसिडेंट किए more amount of electron can be liberated it becomes more positive ज्यादा यूवी रेज इंसिडेंट की more positive means क्या हुआ कि हर बार इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से लिबरेट हो और दूसरा उसका एक्सपेरिमेंट ये था कि जिंक प्लेट पहले न्यूट्रल थी तो उनका रिपल्सन नहीं था अभी क्या हुआ जितनी इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये प्लेस पॉजिटिव हो गई पॉजिटिव के कारण उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता है उससे पता चलता है कि रिपल्सन बढ़ता है पहले ये प्लेट पास पास में थी अभी ये दूर हो गई बिकॉज इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मेटल के पास से निकल रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव 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 हो रहा है जितने अमाउंट में पॉजिटिव बनेगा इतने अमाउंट में रिपल्सन होगा और ये बीनों के दो प्लेट है उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा यस एक ऐसा भी टाइम आएगा उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा when we taking long time हम ऐसा करेंगे तो अभी आगे तुम्हें रीड करना पड़ेगा हॉलवास एक्सपेरिमेंट Hallwards experiment. Hallwards in 1888 connected electroscope with negatively charged zinc plate as shown in figure. Following were his observations. First, when UV light was incident on zinc plate, it lost its charge. Second, initially when UV light was incident on chargeless zinc plate, it became positively charged. Third, यानी when जिंक initial प्लेट zinc plate इंसिडेंट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे हैं तो जिंक प्लेट पॉजिटिव हो रही है आगे
Third, when initially zinc plate was kept positively charged and UV light was incident on it, positive charge on the plate increases. From this यानी पहले से experiment, पॉजिटिव है, हम यूवी रेज इंसिडेंट कर रहे हैं तो इट बिकम्स मोर पॉजिटिव. आगे from this observation, he concluded when UV light is incident on zinc plate, negatively charged particles are emitted from the plate. He also concluded that when frequency of incident radiation is less than some minimum frequency, photoelectrons are not emitted. यस, जब यूवी रेज से भी हम कम एनर्जी इंसिडेंट करेंगे ना मेटल, तो उसके वर्क फंक्शन से कम एनर्जी वाली फ्रीक्वेंसी होगी ना, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन लिबरेट नहीं होगा, तो ये न्यूट्रल ही रहे. यानी हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो इंसिडेंट करनी ही पड़ेगी, तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शुरू होगा. शुरू होने के लिए आपको मिनिमम जो एनर्जी देनी पड़ेगी, इट इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल. उससे कम फ्रीक्वेंसी वाला हम रेडिएशन एमिट करेंगे तो हमें फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा. याद रखना, यानी हमें मिनिमम एनर्जी तो इंसिडेंट करनी ही पड़ेगी, तब यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन शुरू होगा, अदरवाइज इट कैन नॉट बी स्टार्ट. आगे Contiguous और threshold frequency है. ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ओके, ये पता चल रहा है. प्राची, निधि, प्राची, Yes, sir. ओके, कोई प्रॉब्लम निधि? ओके, तो अभी हम शुरू करें आगे. किसी को कोई डाउट नहीं है ना? किसी को कोई डाउट? आप पूछते रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ये पता चल रहा है. ओके, तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं. मिनिमम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी required to emit electron from metal surface is called threshold frequency. तो minimum incident frequency required to emit electron from the metal surface is called threshold frequency. So value of threshold frequency depends on value of threshold frequency depend on type of metal. So value of threshold frequency depends on type of metal. For आपको ये याद रखना है, for most of metal like zinc, cadmium, magnesium, threshold frequency lies in ultraviolet region. तो जिंक है, कैडमियम है, मैग्नीशियम है, इसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लाई इन अल्ट्रावायलेट रीजन. और अल्कलिक मेटल, और अल्कलिक मेटल उसमें आता है लिथियम, लिथियम है, सोडियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम,
फिर है सीजियम, सीजियम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लाइन, इन विजिबल रीजन। अभी है ना, आपको ये मालूम होगा अल्कलिक में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, दैट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लाइन विजिबल रीजन। बाकी के रिमेनिंग मेटल के लिए ये सब फ्रीक्वेंसी लाइन अल्ट्रावायलेट रीजन। तो मोस्ट ऑफ द मेटल लाइक जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, दैट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लाइन अल्ट्रावायलेट रीजन, और अल्कलिक मेटल के लिए ये सब विजिबल रीजन में होता है। तो ये आपको याद रखना है। और हम मिनिमम एनर्जी देंगे, उससे इलेक्ट्रॉन मेटल के बाहर निकल जाएंगे। वो मिनिमम एनर्जी इज नोन एज ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी इज नोन एज ए वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल। पता चल रहा है किसी को डाउट? प्रीत, पता चल रहा है? यस सर। ओके, ओके, तो अभी ये लिख लिया है सबने? 2 मिनट सर। प्रियांशी है, ओके, प्रियांशी। ओके, हो गया सबका? ध्रुवेल तो लिख रहा है। ध्रुवेल, ओके, मोस्ट ऑफ द मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारी यूवी रेंज में है, और अल्कलिक के लिए अल्कलिक मेटल जो है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन में आती है। ये आपको याद रखना है। अभी वापस एक एक्सपेरिमेंट वापस वो स्टडी करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वार्ट्ज विंडो है, और यहाँ पे ये रेज हम इंसिडेंट कर रहे हैं। तो ये विंडो है, क्वार्ट्ज विंडो।
ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है। और ये इवेक्यूटेड ग्लास, इवेक्यूटेड ग्लास प्लेट। अभी हम समझ पाएंगे परफेक्ट। तो ये हमारा जो जो है ना उसको बोला जाता है कम्यूटेटर। भी पहले क्या करना है वो आपको, यहाँ है ना क्वार्ट्ज विंडो है, यहाँ आपको यूवी रेज इंसिडेंट करना, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। एनोड को अभी हमने पॉजिटिव बना दिया है, ये नेगेटिव है, यानी ऑल इलेक्ट्रॉन कैन बी मूव टुवर्ड्स द एनोड, यानी सब इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में एंटर होंगे, तो आपको जो करंट मिलेगा वो माइक्रो एम्पियर में होगा। यानी जो भी इलेक्ट्रॉन अभी लिबरेट हो रहे हैं मेटल सरफेस से, वो एनोड की ओर जा रहे हैं, और एनोड की ओर जाने का उसके पास रीजन ये है, खुद इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट हुए हैं और उनकी तरफ जा रहे हैं, यानी जब वहां पे करंट मिलेगा वो माइक्रो एम्पियर में। अभी आपको है ना करंट कम करना है, तो उसका पॉजिटिव पोटेंशियल डिक्रीज करो, यानी उसका वोल्टेज कम करो, तो आते हुए इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब आपको ये पॉजिटिव पोटेंशियल की जगह पे आपको नेगेटिव करना है, कम्यूटेटर को रिमूव करो, ऐसा सर्कल में होता है। आप पॉजिटिव की जगह पे उसको नेगेटिव कनेक्ट कर सकते हो, नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव, यानी तुरंत आप कर सकते हो। इट इज नोन एज अ रिवर्सिबल की, याद रखना। ऐसी की आती है प्रैक्टिकल में, वो डायरेक्टली पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर सकती है बैटरी के साथ। उसको बोला जाता है रिवर्सिबल की प्रैक्टिकल। ये हमारा कम्यूटेटर है। अभी मैंने पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव बनाया है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, और एक ये पोटेंशियल है, एक ऐसा भी मिलेगा, ऑल इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रीच टू एनोड, यानी करंट आपका जीरो हो जाएगा। तब आपको ये मिनिमम पोटेंशियल समझना है, वो पोटेंशियल यहाँ मेजर हो जाएगा, इज अ पोटेंशियल। और आपको कम से कम इतनी एनर्जी तो देनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कैन बी मूव टुवर्ड्स द एनोड, इतनी एनर्जी तो आपको देनी ही चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंचेंगे, नेगेटिव होगा तब। तो स्टॉप करने का जो पोटेंशियल है, इट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो पहले हम नेगेटिव करेंगे, तब इलेक्ट्रॉन आने वाले कम हो जाएंगे, एक मिनिमम पोटेंशियल ऐसा गेन करेंगे कि आते हुए इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएंगे, वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से मिलेगा। EV0 इज 1/2 MB मैक्सिमम स्क्वायर। हम इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो रहे हैं, तो हमें उसको मजबूरी से बेचना है, तो उसको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर चले जाए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं EV0 is 1/2 MB मैक्सिमम। तो तब उसने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए थे। When we increase the frequency, जब हम इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कर रहे हैं, सो पूछे जी पहलो अंकित वापस रख दो क्वेश्चन। आपको मालूम है मेटल के पास एक मोल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे, इसलिए यहाँ में नेगेटिव पोटेंशियल है, पर आपको जाना ही है, भेजना ही है। तो आपको जितना
ऑपोजिट रिपल्सन है ना, इतना ही आपको एनर्जी देना है, तो वो मजबूरी से भी चला जाएगा। वो पहले रिपल्सन है तो उसको रिपल्सन है इसलिए जाएगा नहीं, खुद नहीं जाएगा, हम मजबूरी से भेजेंगे काइनेटिक एनर्जी दे, तो वो कंपलसरी जाएगा। तो EV0 इज 1/m², वैसे ही जाएगा। अभी रीड करना पड़ेगा। चलो पहले First, as given outline of experimental study of photoelectric effect. As shown in figure, a metal plate cathode C and another metal plate anode A are placed inside evacuated glass tube. A quartz window is sealed and tube from which ultraviolet radiation can pass through it and irradiate photosensitive plate C. आगे Monochromatic ultraviolet radiation has sufficiently low wavelength is incident on cathode C through quartz window W. Electrons are emitted from plate cathode C which are attracted by collector anode plate A, and due to this flow of electron current is formed. तो अभी आपने जो एनर्जी इंसिडेंट की है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिबरेट ही नहीं होगी, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू नहीं होगी। आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो देनी है दैट इज नोन एज ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे और वो एनोड की ओर जा सकते हैं। आगे Potential difference between A and C is maintained, which can be varied also. Polarity of voltage can be changed by commutator. Potential difference between emitter C and collector A can be measured by voltmeter. Current produced is of the order of micro A range, which can be measured by microammeter connected. ओके, जो माइक्रोमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्टमीटर कनेक्टेड पैरेलल टू बैटरी, देख लो। और ये हमारा रियोस्टेट और ये माइक्रोमीटर, मॉली पता चल रहा है। माइक्रोमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्टमीटर कनेक्टेड पैरेलल टू द सर्किट। आगे by changing photosensitive surface on plate C also can be changed, and change in photocurrent can be studied. Intensity and frequency of radiation यानी हम मेटल यहाँ पे चेंज करेंगे ना, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिशन हो रहा है वो भी रेट उसका चेंज हो जाएगा, बिकॉज डिपेंड्स ऑन द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द मेटल, यानी हर एक मेटल का वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा, उसके हिसाब से यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे। यदि किसी का वर्क फंक्शन ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, तो जल्दी से बाहर निकलेगा, तो उसके हिसाब से उसका अट्रैक्शन क्या पे हम यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन गेन कर सकते हैं। आगे filter or colored glass of different color can be placed between plate C, and path of incident radiation and light of different frequencies can be used. By changing distance between light source and plate can be varied. Thank you, sir. ओके, तो अभी हम शुरू करें। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वो शुरू करना है। ये पता चला आपको? किसी को डाउट? सर एक मिनट स्क्रीनशॉट लेवाना। ओके, हो गया? Yes, sir. अब आपने ये तो देखा है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा।
तो अभी इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, हम मेटल पे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, I is NHF, तो एक फोटोन की एनर्जी HF है, तो एक फोटोन की एनर्जी NHF डिवाइडेड बाय एरिया पर यूनिट टाइम, तो ये आपको लिखना पड़ेगा इंडेक्स HF when we increase the number of photon incident on unit area per unit time, तो more amount of electron will be collide with the photoelectron, ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन, ज्यादा फोटॉन्स ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे और आपको करंट ज्यादा मिलेगा। when we intensity is increase, current also increase, it will be in a straight line, जब जब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे आपको करंट ज्यादा मिलेगा, वैसे तो it will be in a straight line। तो आप देख सकते हो वन वैल्यू वन फॉर्म में, when we increase the intensity, large amount of photoelectron can be emitted from the metal surface and we getting large amount of current, therefore we increase the intensity, we getting the large amount of current। तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, वापस रीड करना पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट, तुम्हें रीड करना पड़ेगा। Question 12. If explain effect of variation of intensity of incident radiation on photoelectric current. Collector A is equals to anode is kept positive with respect to emitter C cathode. Hence, electron emitted are attracted towards collector A. By keeping frequency of incident radiation and voltage on collector constant, intensity of incident radiation is changed and resulting photocurrent is measured. देखो हम ज्यादा इंटेंसिटी वाले वेव इंसिडेंट करेंगे तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन होगा और ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन कोलिजन होगा तो बहुत सारे फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, जब बाहर ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा मिलेगा, therefore when we increase the intensity of radiation we getting the photoelectric current also increase and we getting in a straight line, तो इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे हमें करंट मिल जाएगा। और याद रखना आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो उसका मीनिंग ये नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो, उसकी एनर्जी इंक्रीज कर रही है ना तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी, ज्यादा एनर्जी वाले हम रेडिएशन एमिट करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा वेलोसिटी से बढ़ तब उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे Figure shows graph obtained for intensity versus photoelectric current. Photoelectric current is proportional to number of photoelectrons emitted in 1 second, which shows that number of electrons emitted in 1 second. ओके, ज्यादा अमाउंट में इंसिडेंट फोटोन होंगे इतने अमाउंट में फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट भी होंगे। आगे सही है सर। क्वेश्चन 13 ओके, इफेक्ट ऑफ ओके आगे है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन पोटेंशियल करंट। ओके, तो अभी वापस हमें प्रैक्टिकल के बारे में देखना पड़ेगा, ये वन बाय वन स्टॉप किया हुआ है, तो ये पता चला आपको, रोशनी पता चल रहा है, रोशनी नहीं है आज? Yes, sir. ओके अभी हम शुरू कर रहे हैं, तो जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये आपका इंटेंसिटी है, when we increase the intensity
photoelectric current increase, stopping potential does not change. यानी आप intensity increase, intensity will be increase. I1 से I2 बढ़ा, I2 से I3 बढ़ा. When we increase the intensity, photoelectric current will be increase. तो हम intensity बढ़ा रहे हैं, तो photoelectric current increase हो रहा है. तो आप देख रहे हो यहाँ पे photoelectric, पर आपने देखा कि आप intensity बढ़ा रहे हो, तो stopping potential does not change. और stopping potential does not change means kinetic energy of each electron does not change. ये प्रैक्टिकली हो गया. यानी हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, फोटोइलेक्ट्रिक करंट ज्यादा मिलेंगे, पर हर एक की पोटेंशियल सेम रहेगी, यानी हर एक की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं रहेगी. यदि हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, दूसरा ग्राफ हम देख रहे हैं, ये आपकी इंटेंसिटी है, आपकी इंटेंसिटी पर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है. तो फ्रीक्वेंसी चेंज F1, F2, F3, तो ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है. The stopping potential change, frequency is increase, stopping potential increase, and stopping potential increase, the kinetic energy of the electron will be increase. तो हमको kinetic energy electron की increase करनी है, तो हमको stopping potential बढ़ाना होगा, और stopping potential increase करना है, तो हमको frequency increase करनी होगी. आपको intensity नहीं बढ़ानी है. जब आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करांगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज. यहाँ पे आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट चेंज. व्हेन द इंटेंसिटी इंक्रीज, फोटो नंबर ऑफ फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी इंक्रीज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी लिबरेटेड. यहाँ नंबर नहीं बढ़ेंगे, यहाँ केवल एनर्जी बढ़ेगी. यहाँ नंबर बढ़ेंगे, एनर्जी नहीं बढ़ेगी. ये दोनों में डिफरेंस यही है. ये पता चल रहा है. यहाँ पे आपने इंटेंसिटी इंक्रीज की तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट चेंज. मींस व्हाट? कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट चेंज, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज. नाउ हियर सेकंड पॉइंट, व्हेन द इंटेंसिटी इज फिक्स्ड, the frequency is increased. When the frequency is increased, stopping potential increase. And the stopping potential increase, the kinetic energy of electron increase, but the number of photon does not change. यानी हम frequency increase करेंगे तो kinetic energy each electron will be increased, and the intensity will be increased. The current also increase. The number of photo electron is increased, but the kinetic energy of electron does not change. ये दो पॉइंट है ना, वो क्लियर होने चाहिए. तो एमसीक्यू में आपको काम रहेगा. पता चल रहा है? यस सर. ओके. यस सर. किसी को डाउट? ओके, तो अभी रीड करना पड़ेगा वापस तुम्हें. ये सब वापस वही चला रहे हैं इफेक्ट के बारे में. चलो अभी रीड करना है. Question 13. Action effect of potential on photoelectric current in experiment of photoelectric effect. In experiment of photoelectric effect, collector A is kept at positive potential. When magnitude of positive potential is increased, photoelectric current also increases. For particular voltage on plate A, all emitted electrons will reach to collector A and current will become maximum. Now, if collector voltage on collector is increased, photoelectric current will not increase. Value of this collector current is called saturation current. For value of given collector, पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे 2 मिनट तो भी करंट चेंज नहीं होगा. मींस काइनेटिक एनर्जी चेंज बट द करंट डज नॉट चेंज. दैट इज नोन एज अ सैचुरेशन. हमको मालूम है हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, एक लिमिटेशंस आ जाएगी, उसको हम सैचुरेशन बोलते हैं. उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ सकते. जैसे रोज हमारे जो आवर्स है फिक्स हो जाते हैं कि 1 आवर 30 मिनट, 1 आवर 40 मिनट, उसके ज्यादा फिजिक्स हम नहीं खींच रहे. क्यों? बाय सैचुरेशन पॉइंट. बोर हो जाएंगे, हम कवर नहीं कर पाएंगे,
इससे वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, आप देखते हैं करंट वेल में पीक्स हो जाता है, फिर बढ़ नहीं पाता आगे। For value of given collector, potential photoelectric current becomes constant is called saturation current. Now collector voltage is sequentially decreased and made negative. There will be repulsion between electron and negative voltage on वो collector मैंने A. आपको समझाया, वो नेगेटिव बनाओ तो अपने आप करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले सैचुरेशन ला दो, फिर आपको करंट डिक्रीज करो। करंट कैसे डिक्रीज करना है, तो वो प्लेट को नेगेटिव बनाना है। जैसे आप नेगेटिव बनाओगे वैसे ही करंट फ्लो डिक्रीज हो जाएगा और अपने आप नेगेटिव की ओर चला जाएगा। When the current will be reduced, photoelectric intensity also reduce। आगे When collector voltage is more negative, repulsive force will increase and more energetic electrons only will reach to collector. Value of collector current will sequentially decrease rapidly. Value of negative voltage on collector for which photoelectric current becomes zero is cut off voltage or stopping potential. It is denoted by V naught. Energy of ओके, all electron नेगेटिव emitted. पोटेंशियल आपको मिलेगा कि वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होगा, जाएगा नहीं, वो मिनिमम पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। ये सब है ना, हमने पहले प्रैक्टिकल में डिस्कस कर लिया है, इसलिए मैंने वापस वो नहीं ड्रॉ किया है। चलेगा क्यों ड्रॉ करना है, कैथोड एनोड वाला? ना सर चालશે। ओके, चलो आगे। When photoelectric current becomes zero, maximum kinetic energy of photoelectron K max will be equal of electron at V0 voltage. ओके, आगे। For photoelectric current to become zero, maximum kinetic energy of photoelectron is equal to energy of electron at V naught voltage. So K max is equal to E V naught. In this experiment, when frequency of incident radiation is kept constant and intensity of radiation is changed for three different values, I1 is less than I2 is less than I3. Graph of photoelectric current versus stopping potential is shown in figure. तो आप देख रहे हो Graph shows कि यहाँ that पे with increase फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज, इंटेंसिटी इंक्रीज, एंड हियर स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट चेंज। सबका मेटल का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। आगे graph shows that with increase in intensity, saturation current increases. Thus, no number of photon electrons emitted per second increases with increasing intensity of incident radiation. From graph, it can be said that for given frequencies, stopping potential do not depend on intensity. Thus, maximum kinetic energy of photoelectron depends on frequency of incident radiation, but it do not depend on intensity of incident radiation. Thank you. ओके, ये पता चल रहा है आपको। दूसरा पॉइंट पूरा सामने है, वो फ्रीक्वेंसी के बारे में, जो मैंने साथ में एक्सप्लेन कर दिया। ये आपको पता चल रहा है सब? तो अभी प्रॉब्लम करने हैं कि थियरी करनी है? प्रॉब्लम। ओके, तो इलस्ट्रेशन 1 करना पड़ेगा। चलो इलस्ट्रेशन 1। Illustration 1. हाँ, Monochromatic light of frequency 6 into 10 is to 14 Hz is produced by a laser. फ्रीक्वेंसी Power emitted is 10⁻14 हर्ट्ज। आगे पावर एमिटेड 2 into power emitted is 2 into 10 raised to minus 3 watt. ओके, A आगे what is the energy, what is the energy of a photon in the light beam?
व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन लाइट बीम? तो आपको मालूम है E इक्वल टू एच है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, h इज 6.62 हर्ट्ज minus 34, frequency is 6 into 10 raised to 14. The energy is 6.62 hertz into 6 into 10 raised to minus 20 joule. तो आपका एनर्जी आ रहा है कितना आ रहा है? 39.78. 39.78. तो यहाँ पे आ जाएगा 3.978 माइनस 19 जूल। ये हुआ एनर्जी। अभी पावर, पावर इक्वल टू एन एन ई बाई 18। तो ये मैं एनडेस लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट per unit area per unit time. Index equal to n by 80 is the number of photons incident per unit area per unit time. तो हम ऐसा लिख सकते हैं P is a power 2 into 10 raised to minus 3. Energy is 3.978 10 raised to minus 19. तो नंबर ऑफ फोटोन कितने अमाउंट में इंसिडेंट हो रहे हैं? तो ये 19 minus 3 16 कितना आ रहा है? 0.5025 5025 into 10 raised to 16. तो ये होगा Sir, 5.025। Sir, 0.5027 average. चांस ओके। बुक मार 27 चांस है, बुक मार तो 50 છે 5.0। फोटोन्स पर सेकंड मीटर स्क्वायर। पर ये पावर था ना, तो पावर में केवल टाइम आएगा, याद रखना, और यूनिट टाइम, एरिया नहीं आएगा। बिकॉज ऑफ पावर इंटेंसिटी होती है तो एरिया भी आता है। यहाँ फोटोन पर सेकंड स्क्वायर है, फोटोन पर सेकंड, ये पावर के लिए। तो ये फोटोन्स पर सेकंड है। ये आपका हो चुका है। यस सर। चलो अभी 11.3 कर देते हैं। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी कि नहीं ये आपको पता चल जाएगा।
चलो अभी इलस्ट्रेशन 3. 11.3. The wavelength of light in the visible region is about 390 nanometers for violet color and about 550 nanometers for yellow green color. ये वायलेट के लिए है, फिर येलो के लिए 550 550 nanometers, आगे yellow and green, येलो and ग्रीन. 760 nanometers for red color. ओके येलो ग्रीन के लिए सर बोर्ड 760. सर बोर्ड राइट साइड करो, नहीं देख रहा था. ओके हाँ The 760 red color માટે છે. 760 રેડ માટે येलो ग्रीन માટે કેટલું છે? હા, અને yellow green માટે 550 છે. येलो ग्रीन ओके અને આ રેડ કલર માટે 760. ઓકે આગે A. What are the energies of photon in first violet and second average wavelength of yellow green color and third red end of the visible spectrum? Take सबकी H is एनर्जी equal to डिफाइन करो. 6.63 into 10 to minus 34 joule per second and 1 electrovolt is equal to 1.6 into 10 to minus 19 joule. ओके अभी है ना नैनोमीटर है -9 मीटर 550 10 to minus 9 760 10 to minus 9 मीटर. तो आपका ये आंसर आ जाएगा 3.9 10 to minus 7 मीटर 5.5 10 to minus 7 मीटर 7.6 10 to minus 7 मीटर. Energy of violet color E violet equal to SC by lambda. ये HF होता है ना M equal to C by lambda. बता रहा हूँ E equal to HF है तो F की जगह पे C by lambda. तो ये violet है तो violet एक है. H is 6.62 पर 6.63 दिया है. C is the speed of light और 3.9 10 to minus 7. ये आपको है ना जूल में मिलेगा पहले. कितना आ रहा है? 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. ओके ये 5.1 into 10 to minus ये है 19 जूल हो रहा है. अभी आपको ईवी में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड करो 1.6 10 to minus 9. तो ये आपका कितना आ रहा है? 3.18. ऐसे जूल में से ईवी में आना है. आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 10 to minus 19 से तो आप ईवी में चले जाओ. अभी दूसरे के लिए वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा येलो ग्रीन. तो यहाँ पे आएगा येलो ग्रीन HC by lambda येलो ग्रीन. अभी H is 6.62 पर 63 10 to minus 34 C is the speed of light. Lambda is given 5.5 10 to minus 7. (34) में से क्या minus 26 plus 7 ये होगा आपका 19. कितना आ रहा है? 3.616. 3.616. 61 3.616. okay divide by 1.6 10 to minus 19 because it convert into EV. 2.26. 2.26. 2.26. ये दोनों लिख लीजिए फिर थर्ड का भी डिफाइन कर लेते हैं एनर्जी फॉर्म. फिर किस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी वो हम डिसाइड करेंगे.
कृष्णा पटेल पता चल रहा है? हाँ सर। ओके मॉर्निंग यस सर। ओके रुचि प्रीत हो गया ये सबका हो गया है कि बाकी है? सर 1 मिनट। ओके हो गया सर। ओके अभी है ना हमें रेड कलर की एनर्जी डिफाइन करनी है। तो एनर्जी ऑफ रेड कलर एनर्जी ऑफ रेड कलर is SC by lambda in joule. C is the speed of light. Lambda r is 7.6 10 raised to minus 7. तो ये आपका जूल में आ जाएगा 10 raised to minus 19. कितना आ रहा है? 2.6171. 6171. ओके अभी है ना आपको ईवी में कन्वर्ट करना है 1.6356. 1.6 63556. तो ये होगा आपका रेड कलर का 1.6353 ईवी अभी सबका वर्क फंक्शन लिया गया है CS है फिर K है सोडियम है उसका जो वर्क फंक्शन है 2.14 2.30 और 2.75
गया है आपका? यस सर। गौरव हो गया है? यस सर। नो सर। सर एक मिनिट. 6.63 into શું હતું? 10⁻34. C is the speed of light 3 into 10⁸8. થઈ ગયું. अभी है ना, ये पहले वालेट रन हम इंसिडेंट करेंगे. वालेट रन उसकी एनर्जी खुद की 3.1 eV है. चलो किसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देगी? ये तीनों का वर्क फंक्शन दिया है. સર ત્રણેયમાં દેખાશે. यस CS એ એનેમાં ત્રણેયમાં ફોટો ઇલેક્ટ્રિક વેક્ટર્સ. अब ત્રણેયનો વર્ક ફંક્શન કરતા એની એનર્જી વધારે છે. ત્રણેયમાં થશે. ચલો ઓકે. વાયલેટ ગ્રીન નાખીએ ઇન્સિડન્ટ કરીએ તો એમાં શેમાં ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટ જોવા મળશે? 2.26. ઓકે તો 2.26 નાખીએ ને તો આપણને ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ માં ફર્સ્ટ માં એકલામાં જ જોવા મળશે. 2.30 is large. ओके तो हमें यहाँ पे केवल फर्स्ट में दिखाई देगी CS में. अभी लास्ट वाली रेड कलर इंसिडेंट कर रहा है, उसका खुद का ईवी इतना है, तो किस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? नो, किसी में भी नहीं होगा. तो ये उसका आंसर है. इसमें तीनों में हो जाएगा. इसके इंसिडेंट होने से CS में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देगी, रेड कलर में कुछ होगा ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगी बिकॉज उसका एनर्जी कम है वर्क फंक्शन से, इसलिए यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको नहीं मिलेगी. ये सब बुक में लिखा हुआ है, वो आप अपने आप सेंटेंस बढ़ा सकते हो या खुद लिख सकते हो बुक में से ऐसा ऐसा हो रहा है, इसमें हो जाएगा. क्लियर होगा आपको? किसी को डाउट? ओके नो तो ओके लिख लिया है सबने? યસ સર. ओके તો થઈ ગયું. ओ ओके ये लिख लिया है सबने? यस सर. ओके तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कल हमारा सेकेंड टेस्ट 11 का है, 2-3 का हो गया था, 4-5 का है, 4 and 5 चैप्टर. ओके और दूसरी चीज